other words, 5 ways to ask for clarification. Pardon. आपको कोई सुनाई नहीं दिया, कोई कुछ बोला, तो आपने क्या बोलना है? Pardon. If you did not hear or understand what the person said. फिर क्या बोलोगे? Would you mind? Would you mind repeating that? Would you mind repeating that? एक बार आप देख के बोलो, एक बार बिना देखे बोलो. What do you mean? What do you mean? Asking for more information. I'm not sure. I follow you. I'm not sure. I follow you. Could you explain? Could you explain about the matter what you spoke? Next, 5 ways to check if the other person understand. Do you understand what I am saying? मान लो कोई बंदा है जिससे आप बात कर रहे हो, वो इधर उधर देख रहा है, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक बार बिना देख लो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डज द मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? डू यू नो व्हाट आई मीन? डू यू नो व्हाट आई मीन? क्या आप जानते हो मेरा मैं क्या कह रहा हूँ? है ना? क्या ये बात बनती है? डज दैट मेक सेंस? आर यू विद मी सो फार? Are you with me so far? Often used in the middle of long expression instructions. Like मैं ये यूज कर सकता हूँ कि Are you with me so far? आप साथ क्लास अटेंड करते जा रहे हो मगर आप सुन ही नहीं रहे हो, तो Are you with me so far? Is that clear? Often used after giving orders or explain disapproval on attitude. हेल्प लेनी हो किसी से, आप रास्ते में हो, आपको जरूरत है, आपको बाइक पे जाना है. I need a little help. I need a little help. Could you help me out? Could you help me out? आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है किसी तरीके की, तो आप क्या बोलते हो? I need a little help. Could you help me out? नेक्स्ट है could you give me a hand? यूजली यूज फॉर फिजिकल टास्क. आपके हाथ में बहुत सारी बुक्स हैं, बैग हैं, तो आप कह सकते हो could you give me a hand? Could you spare a couple minutes? Could you spare a couple minutes? थोड़ा सा टाइम दोगे मुझे? Could you do me a favor? मेरा काम करोगे? Could you do me a favor? Ways to ask someone else to do something. किसी को कहा भाई किसी को तू कर दे यार. जैसे would you mind opening the window? Would you mind switching off the fan? Would you mind bringing a glass of water? Could you please turn off the lights? Light बंद करना. Could you please turn off the lights? Can you pass me the chicken? Can you pass me the salt? Can you pass me the chair? है ना? Please send me the information. Please call this guy. Please sit with me. I would appreciate if you could wash the dishes. I would appreciate it if you could help me. I would appreciate you if you could join me. Sorry to interrupt someone. Interrupt करना, दखलंदाजी करना. Sorry to interrupt you. क्लास चल रही है, क्लास के बीच में आ रही हो, तो sorry to interrupt you. But I want you to say a real important thing. Excuse me, could I talk to you for a minute? कभी भी आपने किसी से बात स्टार्ट करनी है तो डू रिमेंबर excuse me, sorry to interrupt. Could I talk to you for a minute? Excuse me, could I take your mobile phone? Could I jump in here? Could I jump in here? ना डिस्कशन बीच में बहुत सारे बैठे तो मैं आ सकता हूँ. Could I jump in here? Sorry, I just want to say that I need your help. So will you please help me? I am in very big trouble. Formal, may I have a word? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? May I have a word? बड़ों से, सीनियर से, मम्मी पापा टीचर, बड़ों से किसी से बात करना है तो आपने क्या बोलना है? May I have a word? Ways to encourage someone. किस बढ़ाना है? हौसला बढ़ाना है. Keep up the good work. जैसे आप कभी सोशल मीडिया पर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप, जैसे अब मेरे YouTube के नीचे आपने कुछ भी मैसेज लिखना है तो ये लिख दो कीप अप द गुड वर्क. दैट वाज ए नाइस ट्राई. दैट वाज अ नाइस ट्राई. से दिस आफ्टर समवन मेड ए गुड एफर्ट बट फेल्ड. मगर वो कुछ काम किया मगर वो फेल हो गया, उसका काम बढ़ नहीं रहा. दैट वाज अ नाइस ट्राई. फिर भी आपने कोशिश की. दैट्स अ रियल इम्प्रूवमेंट. अब आपका आगे अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा बता, दैट्स अ रियल इम्प्रूवमेंट. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप सही रास्ते पर हो. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. साथ साथ आपने बोलना बहुत जरूरी है. डू रिमेंबर दिस. यू हैव ऑलमोस्ट गॉट इट. तुम समझ गए. यू हैव ऑलमोस्ट गॉट इट. नेक्स्ट है यू आर डूइंग ग्रेट. क्या बोलोगे? यू आर डूइंग ग्रेट. डोंट गिव अप. हैंग इन देयर. डोंट गिव अप. हार मत मानो. व्हेन समवन इज करंटली हैविंग डिफिकल्टीज.
A person is making efforts but he is facing lot of problems, so even then you can say that don't give up, hang in there, वहीं पर रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी. You can do it, you can do it. Give it your best shot, अपना सबसे बेटर दो. Give it your best shot, best shot, best try, best effort, कुछ भी यूज कर सकते हो. Nice job, nice job, you did great. चाहे आपको पसंद आए या ना आए, कोई भी व्यक्ति अपना ट्राई कर रहा है तो आपको इन वर्ड्स का यूज करके उसकी प्रशंसा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. आफ्टर द पर्सन हैव समथिंग टू डू. फ्रेजेस फॉर कंप्लेनिंग, अपने को कंप्लेन भी करनी है जहां पर आपको अच्छा नहीं लग रहा. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस. आई एम सॉरी बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल. कोई आपको कुछ कह रहा है बट आपको सॉरी बोलना ना चाहिए, नो बोलना ना चाहिए, कंप्लेन करना. आई एम सॉरी बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल. ये भाई ये स्वीकार के योग्य नहीं है. अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल. आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, विद दिस सिचुएशन. I can't stand it when internet is slow. I can't stand it when internet is slow. मैं कुछ नहीं कर सकती. Sucks. मुझे समझ में नहीं आता यार. It's useless. मतलब परेशान हो जाए तब यूज कर लेते. ये रिमेम्बरिंग के लिए, याद करने के लिए, रिमाइंड किसी को याद दिलाना. आई विल ऑलवेज रिमेम्बर, मैं हमेशा याद रखूंगा. आई विल ऑलवेज रिमेम्बर, आई विल नेवर फॉरगेट, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा. यू टॉट अस ए ग्रेट लेसन, थैंक यू सो मच. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यदि मुझे अच्छे तरीके से याद है तो आई वॉज योर ओल्ड स्टूडेंट. आई स्टडीड फ्रॉम यू एज फार एज आई कैन रिकॉल. जितना मुझे याद है, जितना मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ. एज फार एज आई कैन रिकॉल, एज फार एज आई कैन रिकॉल. बार बार बोलोगे, दिमाग में बिठाओ. आई हैव अ वेग रिकलेक्शन ऑफ, वेग मतलब क्लियर. आई हैव अ वेग रिकलेक्शन ऑफ. इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग. ये तो मेरे जुबान पर है. इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग. आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर बट आई कांट क्वाइट रिमेम्बर. मुझे याद नहीं है पक्का. ठीक है. माई माइंड वेंट ब्लैंक. और यार मेरा माइंड तो खाली हो गया. आई couldn't रिमेम्बर थिंक ऑफ एनीथिंग. माई माइंड वेंट ब्लैंक, खाली हो गया. वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. माई माइंड वेंट ब्लैंक. इट डजंट रिंग ए बेल, मतलब इट डजंट साउंड फेमिलियर. समझ में नहीं आया यार. समझ में नहीं आई. कई बार कोई नई चीज होती है अपने को समझ में नहीं आती. इट डजंट रिंग ए बेल. प्लीज रिमेम्बर टू, मतलब याद रखना, याद रखना. प्लीज रिमेम्बर टू, वी आर टू अटेंड ऑनलाइन क्लास ऑन संडे. प्लीज डोंट फॉरगेट टू attend the seminar. Please remember to come to school on time. Please don't forget to pay your fee. I would like to remind you about your month is completed, you will have to pay fee. I would like to remind you that my birthday is going to come, so you will have to come to attend my birthday party. You haven't forgotten to discuss about it. Have you? क्या आपने डिस्कस कर लिया? कोई भी चीज है तो इस तरीके से आप ये लिख लो साथ साथ. वाओ. अब जैसे एक्सप्रेशन अबाउट एज, उम्र के लिए, सी इज इन हर अर्ली 20s, मतलब 20 से 30 साल के बारे में. अर्ली पहले वाला. सी इज इन हर अर्ली 20s. इज इन लेट 30s. लेट 30s मतलब लेट 30s के एंड में आ गया. 37 to 39. अर्ली स्टार्टिंग एज आ गई 20 to 23. अर्ली बोलेंगे. अर्ली 20s 20 23. ही इज इन हिज लेट 30s मतलब 30 से 39 एज. शी इज जस्ट टर्न 6, 6 साल की होगी वो. शी जस्ट टर्न 6. एक्ट योर एज, एक्ट योर एज. एज के अकॉर्डिंग आप बात करो. बिहेव योर सेल्फ. ठीक है ना. आई एम नॉट एज यंग एज आई यूज टू बी. हम पहले इतना यंग नहीं रहा जैसे हुआ करता था. आई एम नॉट एज यंग एज आई यूज टू बी. आई एम नॉट ओवर द हिल येट. ओवर द हिल का मतलब क्या होता है? एन इन्फॉर्मेशन से ओल्ड, ओवर द हिल. यार मैं अभी बुढ़ा थोड़ी हूँ. आई एम नॉट ओवर द हिल येट. ओवर द हिल येट. ही इज नो स्प्रिंग चिकन. ही इज नॉट यंग, ही इज नॉट स्प्रिंग चिकन. अब उसकी एनर्जी वो नहीं रही. इज नॉट स्प्रिंग चिकन. शी इज वाइज बियॉन्ड हर years. She is wise beyond her years. She is young, but she has the wisdom of an older person. She is wise beyond her years. She is young, but she has the wisdom of an old person. I am having a senior moment. I am being forgetful. Senior moment मतलब बुढ़ा हो रहा हूँ. I am having a senior moment. बुढ़ा हो रहा है यार तू. I am
मैं बोला आई एम हैविंग ए सीनियर मोमेंट। ही लिव टू अ राइप ओल्ड एज, वेरी ओल्ड एज, बुजुर्ग हो गया कोई व्यक्ति। ही लिव टू अ राइप एंड ओल्ड एज, शॉपिंग के लिए। भाई डू यू हैव ए शर्ट्स, डू यू हैव पजामास, डू यू हैव ट्राउजर्स, भाई तेरे पास है क्या ये? आप कई बार जाते हैं दुकान पे, डू यू हैव शर्ट्स, डू यू हैव टॉयज, डू यू हैव गिफ्ट्स, वेयर कैन आई फाइंड गिफ्ट्स, वेयर कैन आई फाइंड मोबाइल शॉप, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, मैं अभी ब्राउज कर रहा हूँ ऑनलाइन, लुकिंग कैजुअली, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, आई एम लुकिंग फॉर द मोबाइल फोन कवर, आई एम लुकिंग फॉर मोबाइल कवर। हाउ मच इज दिस, कितने का है भाई ये? हाउ मच इज दिस, कितने का है? इज दिस ऑन सेल, सेल पे है क्या ये? आपने कोई बाजार में गए, दुकान पे सूट लगा है, शर्ट लगी है, इज दिस ऑन सेल, क्या ये सेल पे है? कैन आई ट्राई ऑन इट, कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसको कोशिश पहन सकता हूँ? थोड़ा ध्यान रखना, कैन आई ट्राई इट ऑन, आई विल टेक इट, ये मैं लूंगा, आई विल टेक इट। डू टेक क्रेडिट कार्ड्स, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हो? डू टेक क्रेडिट कार्ड्स? आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस, मैं इसको वापस करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस, एक्सचेंज करना है, बदले में दूसरा लेना, तो आई वुड लाइक टू एक्सचेंज दिस। वेरी, साथ साथ बोलना है, बोलना नहीं है, एक बार बोल दिया फिर एक बार देख के बोलना है, एक बिना देखे बोलना है। फ्रेजेस फॉर टॉकिंग अबाउट फूड, आई एम स्टार्विंग, मुझे भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, नया सेंटेंस करो यार, ये नए नए वेज ऑफ स्पीकिंग। लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, कुछ खाते हैं यार, बहुत जोर से भूख लगी है। हाउ अबाउट ईटिंग आउट टू नाइट, चलो यार बाहर कुछ खाने चलते हैं। हाउ अबाउट ईटिंग आउट टू नाइट, ईट आउट मतलब ईट एट ए रेस्टोरेंट, बाहर रेस्टोरेंट में। आई ब्रॉट सम स्नैक्स, यार मैं तो कुछ भुजिया, ब्रॉट सम, द सूप इज डिलीशियस, द सूप इज डिलीशियस, द सूप इज डिलीशियस, इज डिलीशियस, द सूप इज डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट है यार सूप। Would I have another helping of potatoes? Another helping मतलब another portion, मतलब और चीज लेना चाहते हो, और मिलेगा क्या, मतलब एक प्लेट और। Would I have another helping of potatoes मतलब और potatoes चाहिए, परोठा चाहिए, कुछ भी। I will have, ordering this, I will have parathas, I will have rasgullas, I will have lunch, मैं लंच लेना पसंद करूंगा, कुछ भी है। Could we get the check please, अब मैं चेक करना चाहूंगा, ले आओ, बिल ले आओ। Could we get the check please, चेक बिल ले आओ, ओवर हो गया, खत्म। Could we get the check please? I'm full, मैं फुल हूँ अब, I'm full, I'm satisfied, I'm stuffed, I ate a lot, यार मैं फुल हूँ, ऊपर तक आ गया यार। I'm at a lot, maybe too much। Phrases for talking about TV, where's the remote, remote कहाँ पर है भाई, where's the remote, remote control, is there anything good on, कुछ अच्छा चल रहा है क्या? Is there anything good on? Can I change the channel, क्या मैं चैनल चेंज कर दूं? Can I change the channel? I have already seen this episode, मैंने पहले देख लिया। I have already seen this episode, this is a rerun। rerun क्या होता है? old episode that was already shown on TV previously, जो पहले चल चुका, this is a rerun, दोबारा दिखा रहे हैं, this is a rerun। I love this show यार, मुझे बहुत पसंद है। There are too many commercials, advertisements, there are many commercials, advertisements को commercials भी बोलते हैं। Stop channel surfing, बार बार चैनल ना बदलो यार, stop channel surfing, changing the channel quickly, check the TV guide। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, नेट कनेक्ट करना है, कोई चैनल चेंज करना है, कुछ आपको पता समझ में नहीं आ रहा, तो द टीवी गाइड हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीवी प्रोग्राम, चेक द टीवी गाइड। It's the season finale. It's the season finale. The final episode of the season is called finale. और ये क्या है? 10 phrases you will hear in the airport. Do you have any bags to check? Do you have any bags to check? कोई बैग आपके पास चेक करवाने के लिए? Would you like a window seat or an aisle seat? Window seat क्या होती है? जो आप विंडो में कॉर्नर, जहां पर बिल्कुल जैसे बस के बाद जहां से हवा है, अपने कॉर्नर वाली सीट है, तो उसको विंडो सीट बोलते हैं। आयल सीट होती है जब मान लो दो जने पहले बैठे हैं, तीसरी बिल्कुल बीच कॉरिडोर की वाली बीच में बोल रही है, आयल मतलब कॉरिडोर। हियर इज योर बोर्डिंग पास, आपका बोर्डिंग पास, मतलब आपके पास यहाँ पर आप घूम सकते हो, आपका बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास क्या होता है? द पेपर दैट परमिट्स यू टू एंटर द प्लेन। योर फ्लाइट लीव्स फ्रॉम गेट 15, आपकी गेट 15 से फ्लाइट जाएगी। योर सीट नंबर इज 85, आपका सीट नंबर क्या है? 85। वेरी गुड, वेरी नाइस। फ्लाइट 800 इज नाउ बोर्डिंग, बोलो
फ्लाइट 100 इज नो बोर्डिंग. बोर्डिंग क्या होता है? पैसेंजर्स कैन एंटर द प्लेन. बोर्डिंग मतलब चढ़ना. योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड. तुम्हारी फ्लाइट डिले होगी. आई एम सॉरी टू से दैट योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड. योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल. कैंसिल हो गया तो योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल. दिस इज द फाइनल कॉल फॉर द फ्लाइट 800. ये फाइनल कॉल है. जल्दी जल्दी पहुंच जाओ नहीं तो ये टेक ऑफ कर जाएगा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? आपका ट्रिप का पर्पस क्या है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे. Watch this video again. Don't forget to hit the like button and comment or subscribe. Don't forget to